Patipandiya Bundan Puje Dhamman Puje Sangham Puje. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing according to the Dhamma. May this humble offering be accepted. हम लोग लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं विभिन्न संज्ञाओं की, तो आज उसका एक सिंहावलोकन, एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि वी डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग मोर अबाउट देम, लेकिन एक बहुत आवश्यक है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, इसकी क्या आवश्यकता है, इतने एलाबोरेट डिस्कशन की क्या आवश्यकता थी। कई बार ऐसा लगता है कि साधना तो बहुत सिंपल है, आप जो हो रहा है उसको देखते जाओ, तो ये सब इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है। मैंने वैसे समझाने की कोशिश की थी शुरू में ही क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी साधना जो है, सुबह शाम की साधना का अपना लाभ है, लेकिन जो बाकी समय है उसमें हम कैसे जी रहे हैं, किस तरह से संसार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा वर्ल्ड व्यू है, उसका बहुत भारी असर पड़ता है हमारे मानस पर। तो इसकी आवश्यकता क्यों हो, उसको समझने के लिए मैं अजान चा की पुस्तक से कोटेशन आपके सामने, थोड़ी लंबी है, पढ़ देता हूँ कि वो कहते हैं कि प्रैक्टिस किसे कहते हैं। Let me just open it and see. Most people still don't know the essence of meditation practice. They think that walking meditation, sitting meditation, and listening to Dhamma talks are the practice. That is true too, but these are only the outer forms of practice. The real practice takes place when the mind encounters a sense object. That's the place to practice, where sense contact occurs. When people say things we don't like, there is resentment. If they say things we like, we experience pleasure. Now, this is the place to practice. How are you going to practice with these things? That is the crucial point. If you just run around chasing after happiness and away from suffering all the time, we can practice until the day we die and never see the Dhamma. This is useless. When pleasure and pain arise, how are you going to use the Dhamma to be free of them? This is the point of practice. आगे भी है, आप पढ़ सकते हैं पुस्तिका से। तो मुख्य बात इससे हम क्या समझते हैं, क्या समझा, क्या बात मेरी समझ में आई इससे, कि जो फॉर्मल प्रैक्टिस है उसकी एक लिमिटेशन है, बहुत आवश्यक लिमिटेशन है। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो गलत है या उसमें कोई कमी है, इसलिए कि उसमें लिमिटेड सेंस कांटेक्ट होता है। हम सिर्फ आंख बंद है हमारी, कान में कोई आवाज शब्द नहीं सुन रहा, कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, सिर्फ टच हो रहा है बॉडी पे विद इन बिकॉज ऑफ आउटसाइड और इनसाइड, एंड थॉट्स आर अराइजिंग. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. बॉडी, breath, touch, thoughts. But we're missing very crucial things. In life, a constant interaction through eyes and ears happens. We're not doing anything about them during practice. So that's the limitation. That's why Lumpur is telling us the real place to practice is when the mind encounters a sense object. And this happens during our day-to-day life. So we need to see that what happens when sense object contacts. And हमारी जो instinctive tendencies है, जो हमारी programming है instincts के हिसाब से, वो ये है कि प्रिय के पीछे भागो, अप्रिय से दूर भागो. हम कहते हैं रूपम अनित्यम वेदना अनिच्चा and so on, but when it comes to actual contact with the Vedana, what happens?
अनप्लेजेंट वेदना होती तो हमें याद रहता है, हाँ अभी अनित्य है, बदल जाएगी, चलो चलो, सो दैट वी हैव होप कि हाँ बदल जाएगी, पेन विल डिक्रीज. बट व्हेन प्लेजेंट वेदना अराइजेस, प्लेजेंट सिचुएशंस अराइज ऑफ वेरियस काइंड्स, we forget it, conveniently forget it. We think it is a permanent and then enjoy it and don't remember its transience. When somebody praises us, we feel so happy. And we take that praise personally. Yeah, of course, I am a good person. I've done such wonderful work. That's why I am deserving the praise. So practice is not happening really. And all these things, all this natural, so-called natural tendency of the unregenerated mind of a Puthujana, of an ordinary worldling, is what Buddha calls as vipallasa, distortion. It is a hallucination. So there's a sutta in Anguttara Nikaya 4.49 called Vipallasa Sutta. It's very beautiful. मैं उसके जो कंक्लूजन है वो सिर्फ पढ़ता हूँ आपके सामने, क्योंकि पोएम एक वर्सेस के रूप में भगवान ने उसको कहा है, जो पहले प्रवचन दिया उसके बाद उसको समराइज किया. सो आई जस्ट रीड आउट टू यू दैट समरी. अनिच्चे निच्च सन्निनो दुखे च सुख सन्निनो अनत्तानि च अत्ताति अशुभे शुभ सन्निनो मिच्छा दिठिन हता सत्ता खित चित्ता विसन्निनो. तो जो अनित्य को नित्य मानते हैं, उसको परसीव करते हैं, अनित्य को नित्य की तरह से, दुख को सुख मान की तरह परसीव करते हैं, जो अनात्मा है उसको आत्मा अपना अपना मानते हैं, जो अशुभ है उसको शुभ मानते हैं, जो ब्यूटीफुल नहीं है उसको ब्यूटीफुल मानते हैं. मिच्छा दिट्ठी, जो इस तरह के रॉन्ग व्यू से प्राणी जो है सत्ता खित्त चित्ता मतलब जिसका विक्षिप्त हो गया चित्त, जो डिरेंज हो गए हैं, पागल हो गए हैं, विसन्निनो, और उनका परसेप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, टोटली अपोजिट हो गया है. So that's the condition, he says. We are all got deranged because we are not able to see things what they really are. And what is the consequence? Te yoga yutta maharasya ayoga khemino jana satta gachanti samsaram jati maranagamino. तो मार के बंधन में बंधे रहते हैं योग में, और कोई उनकी योग खेम जो है, उनकी जो सिक्योरिटी कहीं नहीं है इस संसार में, उसकी बॉन्डेज से कोई सिक्योरिटी नहीं है. सत्ता गच्छन्ति संसारम, और जो प्राणी है वो संसार में घूमते रहते हैं, संसरण करते रहते हैं. जन्म में जाति जन्म मरण जामिनो, बर्थ होगा डेथ होगा, बर्थ होगा डेथ होगा, चलते जाएंगे, ऐसे चलता जाता है. And what should be done? यदात बुद्धा लोकस्मिन् उपज्जन्ति पभंकरा ते इमं धम्मं प्रकाशयन्ति दुःख उपशमगामिनं तेषं श्रुत्वा न सपन्या सच्चित्तं पचल लद्धते अनिच्छम अनिच्चातो दुःखम 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 अदुःखु दुःखतो. जब कोई बुद्ध जानते हैं, अवेकन्ड वन अराइज होते हैं इस संसार में, जो कोई सेट्स द लाइट ऑफ विजडम, ते इमं धम्मं प्रकाशयति, वो इस धर्म को प्रकाशित करते हैं, समझाते हैं, दुःख उपशमगामिनम, जिससे कि दुख की उपशमन हो जाए, शांत हो जाए. और तेसम सुत्वान सपन्या, जो समझदार लोग हैं उसको सुनकर सच्चित्तम पच्चलद्धा, अपनी जो चित्त है उनका विक्षिप्त चित्त से सच्चित्त हो जाता है, मतलब उनकी सैनिटी जो है वापस आ जाती है, उनका पागलपन दूर होने लगता है. अनिच्छम अनिच्छम अनिश्चितो दुःखम, जो अनित्य है उसको अनित्य जानते हैं. दुःखम अदुःखु दुःखतो, जो दुख है सचमुच में उसको दुख मानते हैं, उसको सुख नहीं मानते. अनत्तानि अनत्ताति अशुभम अशुभ दस्सुम सम्मा दिट्ठि समादाना सब्बम दुःखम उपच्युगुना. तो जो अनंत है उसको अनंत मानते समझते हैं, और जो अशुभ है, जो अनअट्रैक्टिव है, उसको अनअट्रैक्टिव मानते हैं. और इस तरह से सम्मा दिट्ठि होने के बाद सबम दुःखम उपच्युगुम, सारे दुखों को खत्म कर देते हैं, उनसे पार हो जाते हैं. That's the real issue really for most of the worldlings. This is the problem, that जो अनित्य है उसको हम नित्य मान बैठे हैं, भूल जाते हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा मानते हैं, जब ओकेजन आता है उसी समय भूल जाएंगे, खासतौर पे जब प्लेजेंट सिचुएशंस आती हैं और उनको अपना मानेंगे. अप्रिय परिस्थिति आएगी तो कहेंगे हाँ ये
दिस वे, ये जो मेरा द्वेष है ये मेरा नहीं है, जो मेरा गुस्सा है ये मेरा नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट टू से सो। बट ये जेनरोसिटी तो मैं ही कर रहा हूँ, ये पुण्य तो मैं ही कमा रहा हूँ, ये अच्छे काम तो मैं ही कर रहा हूँ, एंड यू गेट ट्रैप्ड। दैट्स व्हाई it's very important that these sannyas be understood, that we come out of this delusion as hallucination. And the three sannyas, वहाँ पे चार की बात की गई, जो तीन है उसमें से वो तो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो बेचारे पार्ट ऑफ सम्मादिट्ठी है। भगवान उसमें बताते हैं अनिच्च संज्ञा, अनिच्चे दुख संज्ञा और दुखे अनर्थ संज्ञा। These three sannyas which are fundamental parts of सम्मादिट्ठी, right view। हम उनको जानते हैं, उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम दे चुके हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। बट एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उसका कैसे मुझे पता चले कि अनित्य संज्ञा पुष्ट हो गई, क्योंकि हमसे ये भूल हो जाती है। हम समझते हैं कि साधना करते हुए मैं वेदना देख रहा हूँ और वो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे मालूम पड़ रहा है, तो ये अनित्य संज्ञा पुष्ट हो गई। ऐसा नहीं है ना, भगवान ने ये क्राइटेरिया नहीं रखा अनित्य संज्ञा पुष्ट होने का। क्या रखा है? सीधी, आई मीन दैट्स वेरी रिमार्केबल व्हाट क्राइटेरिया ही हैज पुट, कि अगर अनिच्च संज्ञा में कोई पुष्ट है, उसका क्राइटेरिया क्या है? His mind shrinks away from gain, offering and fame, pulls away, pulls back and so on. And either there is equanimity or loathing when this happens, which means लाभ और सत्कार और प्रशंसा और प्रसिद्धि, उससे उसका मन हटता है, दूर भागता है, उसके साथ चिपकता नहीं है। It pulls away, pulls back। और अगर कोई परिस्थिति आती है कि वो आ रही है, तो इज आइदर बी इक्वेनिमस और इज वेरी कॉशियस कि कहीं मैं अटक ना जाऊं इसमें, देन यू कैन से हाँ नित्य संज्ञा पुष्ट हो रही है। और दुख संज्ञा पुष्ट हो रही है, इसका क्या क्राइटेरिया बताया भगवान ने? कि धम्म संवेग इतना जाग जाएगा, इतना जाग जाना चाहिए कि हमारी सारी जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, थिनविद है, वो सब समाप्त हो गया। जो हमारी लैक ऑफ कमिटमेंट है, रिफ्लेक्शन करना करना लगता है फालतू की चीज है, all that is finished। There's a fierce perception of danger and fear towards idleness, indolence, laziness, heedlessness, lack of commitment and lack of reflection, as if towards a murderer with an upraised sword। That's the analogy the Lord is giving us। That's what, when this kind of a situation happens, then we can say हाँ हमारी दुख संज्ञा पुष्ट हो गई। हमने देख लिया कि शरीर में दुख है और हम कहें हमारी दुख संज्ञा पुष्ट हो गई, या हमने सुख देख लिया कि हाँ सुख भी बदल जाता है तो दुख संज्ञा पुष्ट हो गई। That's not enough, that's not, it's a very elementary thing, that is only recognition of suffering, not establishing in dukkha sanya। And then of course result of it also will be disenchantment with hedonistic tendencies, जो इंद्रिय सुख की टेंडेंसीज है उससे प्रति मोह भंग हो जाता है। पता चलता है कि ये तो सब दुखी है, तो इसलिए उसको चेज करने की सारी टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण कार्डिनल संज्ञा है अनंत संज्ञा, और उसका क्या क्राइटेरिया होगा? His heart is devoid of I making and my making with regard to this conscious body, and externally in regard to all nimittas, means whatever arises in the mind, whatever appears before various senses, in nothing he identifies it as me or mine or myself. Obviously it includes body and all the five khandhas. And it not stops here, and has transcended pride, is at peace and is well released, which means he's not bound by anything then. If Anitta Sanya is really fully developed, he's there, he's already free. That is the kind of condition which we must remember as a criteria to see कि हमारी अनंत संज्ञा पुष्ट हो रही है नहीं। तो इसके साथ साथ हमने और भी कई संज्ञाएं की थी जो इससे रिलेटेड है, उनको चर्चा कर लेते हैं। तो आदिनव संज्ञा थी, which is actually recognizing the danger in the body because of various kinds of exposures which it can have, illness, getting hurt from here or there, or from snakes or lizards or dogs or anything for that matter. So knowing that body is extremely vulnerable,
is the part of Adinava Sanya. Then another thing which we have done, which also is in a way part of Dukkha Sanya, is Marana Sanya, which has its own importance. और मरण संज्ञा में पुष्ट हो रहे हैं हम, उसका बात समझ में आ रही है, उसका भगवान ने क्या मार्गदर्शन किया है. The mind shrinks away from longing for life, and there is equanimity or loathing towards such things. मतलब धम्म संवेग जागेगा एक तो दुख संज्ञा के हिसाब से, दूसरा भव तन्हा समाप्त हो जाएगी कि मुझे बने रहना है, मुझे जन्म के बाद एक के बाद दूसरा जन्म आना चाहिए. That would end because one recognizes जन्म आएगा तो मरण भी होगा, जन्म आएगा तो मरण भी होगा. It's not worth getting into that cycle. That would be the establishment in this. और इसी सीरीज में जो ऊपर भी उसमें विपल्लासा में आता है अशुभ संज्ञा, जो नॉन ब्यूटीफुल है उसको ब्यूटीफुल मान लेते हैं. और एक और बात जो उसमें नहीं थी लेकिन हमने स्टडी की है वो है आहारे प्रतिकूल संज्ञा. They are all the same. They are specialist sannyas for special situations. When mind is excessively given to lust, ashubha sannyas, so that the tendency of the mind seeing body as beautiful and enjoying the interaction is removed, and one naturally adopts celibacy. And ahare patikul sanya for person who is excessively fond of eating and is craving for various kinds of flavors, various tastes, various foods from various countries and all that. So then ahare patikul sanya, as we discussed. And of course it will result in bhattamatanya. You'll be able to know what food to eat, proper diet, proper quantity of the food. So these are the outcomes of the three principal sannyas. अनित्य संज्ञा, दुख संज्ञा, अनत्थ संज्ञा, और उसके जो क्या कहना चाहिए ऑक्सिलरी एस्पेक्ट्स हैं जो उससे रिलेटेड है, खासतौर पर दुख संज्ञा से, मतलब आदिनव संज्ञा है, मरण संज्ञा है, अशुभ संज्ञा है, आहारे प्रतिकूल संज्ञा. So these are all, you can say, relate to those basic three sannyas. Then we also discussed other sannyas which are quite important. So I think we'll discuss them tomorrow. What I suggest is that what we do in our meditation practice today is practice this anicca sanya, anicca dukkha sanya, and dukkhe anatta sanya. How does he practice it? You remember? The person has to reflect on impermanence of five khandhas. Person reflects on the suffering involved in various activities, in various experiences. And anatta sanya, seeing how various senses and their corresponding objects are not me, not mine, not myself. And therefore whatever arises based on them, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके विषयों से संपर्क के माध्यम से जो जो उत्पन्न होता है, विज्ञान, संस्कार, विज्ञान, वेदना, संस्कार, the activity, all that is not me, not mine, not myself. So that we can get into that situation where at least we began to regard the five khandhas as not me or mine, and we get established in it. Then the other consequences will follow. So मेरा सुझाव है कि हम आज इन तीनों संज्ञाओं पे 15-15 मिनट प्रैक्टिस करके देखें, या बेशक एक पे ही करें, नित्य संज्ञा पे कर लें या अनत्थ संज्ञा पे कर लें, जिसको भी जैसा सुहा है, so that we really experience what does it mean to reflect on anicca, reflect on dukkha, and so on. You can reflect using five senses, five khandhas paradigm, or reflect using six senses paradigm, whichever is where we find ourselves comfortable with. Okay. So let us practice it in that way till 8:15. Thank you. Thank you.